Tell me quickly, how did you find the paper, how many attempts you did, and the score? Okay, this is level 1, 2, 3. Means easy, moderate, or difficult. And how many attempts did you do? How many attempts out of 32? And the score? Okay, 18 with 42, that is 90% accuracy. For 18, you should have had 48, but you have 42. 6 marks less, which means 2 questions wrong. 10 questions, 24. That should have been 30. 24, okay. 5 right तो बहुत कम है. 39 marks scored, 2 marks lost. Okay, accuracy is fine, but so nobody got above 50. Okay, let's take a vote like this. 20 to 30 marks, 30 to 40, 40 to 50, 50 above, or 20 below. Okay, so mark options A, B, C, D, E accordingly. I'm starting the poll, okay? Data was missing. Okay, I'll check. पूरे 3 hour पेपर दिया, सबमिट ही नहीं हुआ. अरे ये कैसे हो गया? सबमिट तो ऑटो सबमिट हो जाता है. So Sahil, you scored 51, like after having a negative of 15, or 15 were negative from there? Sorry. Poll I have activated. So you have to mark A for less than 20 score, B for 20 to 30, C for 30 to 40, D for 40 to 50, and E for 50 plus score. Okay, तो वो टेक्निकल एरर हो गया होगा. I'll just like get it corrected next time. सिर्फ एक क्वेश्चन में था वैसा, या फिर क्या हो रहा था? Four questions, like 4 sets. One set, okay. For one set it happened. All right. ठीक है, उसके अलावा कैसा हुआ? 7 सेट्स तो और थे ना.
You should have rounded off, Rohit. Like whatever it is, if it was above 0.5, you should have rounded it off. Otherwise, remove the decimal. तो क्यों रॉन्ग हो गया फिर? ठीक है, देखते हैं, वो तो हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर बाद में. आज हम लोग सिर्फ यही देखेंगे कि लाइक लाइन से कैसे आगे बढ़ना था और कौन से सेट्स थे जो हमें करते हुए जाना था, कौन से सेट्स थे जो हमें बिल्कुल टच नहीं करना चाहिए था, कौन से सेट थे जो बाई चांस अगर हम स्टार्ट कर लेते तो हमें बीच में छोड़ देना चाहिए था. विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स. ठीक है. I wrote 697 but correct answer was, तो वो 0.3 एंटर करना था. वीकली वाला प्लस का एनालिसिस इज ऑन ट्यूसडे. It's from 9 to 10:30 p.m. So was there a possibility to enter that decimal part? Okay, we'll see questions if we have time. ठीक है, पहले हम लोग strategy ये सब discuss कर लेंगे. Last में if we have time we'll discuss one or two sets if we have enough time. Okay, don't worry. और फिर remaining sets we'll cover in the upcoming classes. Special classes जो 7 to 8 होते हैं उसमें हम लोग बाकी questions cover कर लेंगे. Don't worry. So today also we have a class 7 to 8. उसमें we'll start covering the sets. Okay, Rohit, I'll see that question. आज मॉक हुआ उसका solution. Yes, Shadab. Okay, so shall we start now? So it's 39%. 39% have got less than 20. Then 29, 21, 5 and 6%. Okay, so we see that 40 to 50 और 50 above ये बहुत ही कम लोग हैं इस range में. So anything above 40 could have mean like 90 plus percentile. ठीक है, let's start, let's see. तो बाकी लोग वर्क हार्ड. ठीक है, वर्क ऑन योर कॉन्सेप्ट. देखो कि कौन से टाइप के क्वेश्चन है जो हो पाए, कौन से नहीं हो पाए, क्या करना है अब, है ना. आई विल जस्ट अपलोड द पीडीएफ. 1 सेकेंड. तो जो टॉपिक्स के नहीं हो पाए उन पे आप वर्क करो इस पूरे वीक, ताकि फिर से नेक्स्ट वीक तो मतलब कोशिश ये होनी चाहिए कि पूरे 10 टोटल फ्री टेस्ट है. ठीक है, ये जो कैटलिस्ट वाला स्टार्ट हुआ है, कैटलिस्ट फ्री मॉक, इसमें टोटल 10 फ्री टेस्ट आपको मिलेंगे जिसमें से आज सेकेंड टेस्ट था, है ना. सो ट्राई आपका ये होना चाहिए कि हर टेस्ट में आपका ग्राफ जो है वो ऊपर जाना चाहिए. ठीक है, कैसे इंश्योर करोगे वो? सो अभी जो मैं एनालिसिस करा रही हूँ वो तो है ही. इसके बाद आपको भी एनालाइज करना है कि कौन से सेट्स थे जो आप कर सकते थे पर या तो प्रेशर में नहीं किया या उस वक्त समझ में नहीं आया कि करना चाहिए. ऑल दिस थिंग्स. ठीक है, या फिर कौन सा टॉपिक था जो पर्टिकुलरली अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा था, जिसमें दिक्कत आ रही थी. उस टॉपिक्स पे आपको इस पूरे वीक पे वर्क करना है सो दैट next test you can improve a little. ठीक है, by little if you keep improving till the end of 10 test it will make a huge difference. सिर्फ टेस्ट देख के सोल्यूशन करने से कैसे होगा? जो टॉपिक वीक है फिर उस पर और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे ना. यू हैव द एंटायर वीक टू रेक्टिफाई जो भी मिस्टेक्स हुए हैं. उस टॉपिक को ठीक करने के लिए पूरा वीक आपको मिल रहा है. तो पर अगर आप उसमें कुछ करोगे नहीं और सिर्फ टेस्ट 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 लिखते जाओगे एवरी वीक तो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा. फिर आपको क्या लगेगा कि मतलब इट विल जस्ट लीड टू डीमोटिवेशन, डीमोरलाइजेशन. लगेगा कि नहीं हमसे तो हो ही नहीं पा रहा है. अरे तो आप लोग कुछ करोगे उसके लिए तब होगा ना. प्रॉब्लम्स तो है, समझ में आ रही है, पर उसको सोल्यूशन ही नहीं निकालोगे और सिर्फ हर बार बोलते रहोगे प्रॉब्लम है कैसे होगा? Okay, Yash, we'll see the question. So what about this question? First one, how was it? So when I read, see, देख के I can't say whether the question is easy or tough because इतनी सी information दी गई है और टेबल भी काफी सिंपल सा छोटा सा टेबल हमें दिख रहा है. ठीक है, but if we start reading the questions, we see that this is a question on maxima minima. ठीक है, where we have to maximize and minimize the values. ठीक है, so it can get tough at a point. Maximization and minimization. Yes. So
The method should be not screening all the questions first and then starting. That is not the correct way, because you might end up wasting your 10 minutes there. और 10 मिनट्स में देखोगे कि 8 सेट है, एक एक मिनट करके हर सेट को देख के अगर आप बता सकते कि मुझसे हो पाएगा कि नहीं, तो फिर मतलब क्या आप मतलब फिर तो सब 100% टाइम ले आते ना हम लोग. It's not possible to do that. It's not possible to look at the set and tell if we will be able to solve it till the end or not. So then what to do? What to do? Go in attempts, like round attempts. Like first round, go and see, like I see that, okay, this is based on maxima minima, so I should not start with this, okay, because I might end up wasting a lot of time here. Maybe I can come back to it later, but not right now. In round one attempt, I am not going to touch this question. Okay, next. If you check the next set, it says it's on tournament. So Ankit, Bhanu, Charan, Darshini E, and our 5 tennis players. The qualification into international tennis tournament is based on their performance in the last 100 matches in each of the district levels. State level and national level are assessed. In the order to qualify the tournament, the minimum number of matches that each of these players have to win in the last 100 matches in each of these levels is 20, 30, 40 respectively. ठीक है, तो टूर्नामेंट का एक क्वेश्चन है, ठीक है, इंफॉर्मेशन भी दी गई है, ठीक है, बट अगेन दे आर टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम पॉसिबल. ओके, they're talking about maximum possible. Again, it was a question on, it involved maximization, minimization along with tournament. So it sounds like a tough topic to me. Again, in first round, don't touch it. Okay, next set was on, it looks like a simple puzzle, so this is something I can start with. Okay, this is something I can start with, and if I get this correct, at least, see, till now I have not wasted much time, maybe 1 minute on the first question, 1 minute on the second question, and I skip those. If I am able to solve this in 8 minutes, so within 10 minutes I will have 4 correct questions in my pocket. Okay, and I can move ahead feeling confident. So that is very important. That's why in round 1 you have to skip through. कुछ भी अगर थोड़ा भी tough दिख रहा है, आपको लग रहा है, just skip it, and but stop and attempt the ones that you find okay, ये हो जाएगा, like ये देख के ही पता लग रहा है ना. इसमें क्या दिया हुआ था, 8 employees है, A B C D E F G H of different height, all of them are standing in a row in increasing order of height, such that the shortest is at the extreme left end. Okay, so shortest is here, so tallest will be here. You had to just arrange them. Also, 3 of them belong to Mysore, 3 of them belong to Pune, and 2 others to Visakhapatnam. So that was a very, very easy set. You had to just use the clues, and like it was like a matching puzzle plus sequencing puzzle. So once you solved it, you could have got the answers. I think within 7 to 8 minutes, you could have solved this set, right? So within 10 minutes, I am here at this point with 4 correct answers. That is how we proceed. Next, we have this one. What about this one? In a bull's race, 4 bulls. Okay, anybody who was not able to solve the previous one, the third set? You're talking about the third set, Paras, Puneet. No, I'm asking कि कोई ऐसा है जो थर्ड वाले पे अटक गया, नहीं कर पाया? Okay, that means you guys have to work on the basics. So where are you right now? Are you like, have you just begun, or how is it? Like if you're not able to solve that set, it means you have to start working on your basics right now. Okay, so like stop giving the mock now and work on your basics first. ठीक है, I'll guide you at the end of the class. ठीक है, stay till the end. वो सब जो लोग भी beginners हैं, I'll give you the strategy of how to begin at the end. So let's just go through the question one round. Okay, what about this question? In a bull's race, 4 bulls were participating, J, L, R, and H. The wins odd placed against bull J, L, R, and H were 3, 2, 8, 5, 3, 1, 2, 1 respectively. Okay, so win odd is the amount of profit one gets against the amount one has bet, which means if bull J wins, you will get 3 times of the amount, right? For example, a win odd of 4-1 means you will get ₹4 in profit against ₹1 you bet. You get 100% of the profit of the amount and the bet amount on that bull if the bull wins the race. Okay, so if the bull wins and if the
this rate was 4:1, it means you will get the profit as well as you'll get your 1 rupee back. Okay. So this was easy, I think. It was again solvable. It was again a solvable question. थोड़ा सा देखना था, इसमें हो सकते 7 से 8 नहीं होके 10 से 12 मिनट लग जाते, but it was again a solvable set. You could have done it in round 1. Okay, जिन लोग को डाउट्स है वो बाद में देखेंगे. So was this the set जहाँ पे मिसिंग था? In a manufacturing branded jeans pant for men and women, the only cost incurred by manufacturer are raw material cost and electricity cost. There are 5 suppliers who can provide raw material to the manufacturer. For each supplier, there is different cost of raw materials and different numbers of electricity units are required for one unit. Following table provides us the whole data of all the suppliers. So was this the missing information? Supplier 3, 4 and 5 was missing. All right, तो ये तो फिर टेक्निकल इशू हो गया, नहीं तो दिस क्वेश्चन वाज आल्सो सॉल्वेबल, है ना. डायरेक्टली क्वेश्चंस जो है यूज करके टेबल से इंफॉर्मेशन निकाल के सॉल्व करना था. ओके फाइन, आई विल इन्फॉर्म इट टू द बैक एंड. So this was a question that could have been done in the first round, but bad luck, the question was not given complete. All right, otherwise you could have 3 sets still here out of 5. What else do you need? If you have 3 sets out of 5, you are going well. Okay. If you had 3 sets out of 5 in the first half an hour or 35 minutes also, it would have been fine. अच्छा, मोबाइल में दिख रहा था. Okay, what about the next one? Next one was again a easy set. Simply table दिया हुआ था और कुछ भी नहीं है टेबल में, मतलब कोई और इन्फॉर्मेशन भी नहीं है टेबल के साथ. द फॉलोइंग टेबल शोज द 5 डिफरेंट स्टेट्स ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स. ठीक है, तो बस डायरेक्टली क्वेश्चंस लेने थे और उनको आंसर करना था. इट वाज अ लाइक नॉर्मल डीआई सेट. हाँ, इफ इट इज नॉट लॉजिकल इट हैव टू हैव कैलकुलेशन इन्वॉल्व. कुछ एक चीज तो रहेगा ही. डीआई सेट है तो या तो वो एलआर बेस्ड होगा जिसमें सेट देंगे डीआई के फॉर्मेट में, पर सॉल्व लॉजिकल रीजनिंग यूज करके करना होगा, या फिर कैलकुलेटिव रहेगा. कोई एक चीज तो रहनी होगी. सो व्हाटएवर, एक ऐसा सेट आ सकता है और एक ऐसा सेट भी आ सकता है. ओके, वेयर नाउ टेल मी. अच्छा, ये वाला 697.43. And in the question it was, what is the approximate number of women in lakhs in the state which had the highest number of men per thousand among the given countries? Okay, so 697 मार्क करने पे रॉन्ग हो गया ये. ऑल राइट, तो आपने अच्छा क्योंकि अप्रोक्सीमेट दिया हुआ था तो सबने यही निकाला होगा, राइट. ओके, अगेन sorry for this, it's again a technical error, so I'll take all these feedbacks for the team and they will look into it, okay, so that it doesn't happen next time. Next में भी यही है 48.09, so 48 was not accepted. All right, what is the total? अच्छा, इसमें तो options दिए हुए हैं. 47 was accepted. How was that? Yeah, on-screen calculator will be provided in CAT, but that is not very convenient to use. ठीक है, बहुत बड़ा कोई कैलकुलेशन है और आपको लग रहा है कि वो मैनुअली सॉल्व करने में भी उतना ही टाइम लग जाएगा जितना आप कैलकुलेटर यूज करके करो, देन यू कैन गो फॉर इट. ठीक है, पर उसके लिए भी अच्छा है कि थोड़ी प्रैक्टिस रहे. हाँ, जैसे कि ये लोग काफी लोगों ने यहाँ पे बोल रहे हैं कि उन्होंने ऑन स्क्रीन गूगल कैलकुलेटर यूज कर लिया, सो यू कैन ऑल्सो यूज दैट फॉर प्रैक्टिस. ठीक है, हाँ, देन यू कैन डू इट बिकॉज इट वाज एन इजी सेट. सिर्फ कैलकुलेशन की वजह से इसको जाने देना वाज नॉट करेक्ट. ठीक है, सो देन दिस इज द फोर्थ सेट दैट यू कुड हैव सॉल्व्ड टिल नाउ. सिर्फ फर्स्ट 2 अभी तक ऐसे थे जो बिल्कुल टच भी नहीं करना था, एटलीस्ट नॉट इन फर्स्ट राउंड, और आई थिंक उन पे जाना भी नहीं पड़ेगा इन द सेकंड राउंड.
तो हो सकता है कई बार जानबूझ के क्वेश्चन पेपर ऐसा सेट किया जाता है कि फर्स्ट सेकंड ये सब जो सेट्स होते हैं उनमें ही आपके लिए ट्रैप होते हैं, ठीक है। और जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो जिनको ऐसा होता है कि नहीं ये क्वेश्चन अगर मुझे लग रहा है कि मेरा होगा तो करना ही है, या फिर 5 मिनट इन्वेस्ट कर दिया उसके बाद लगता है कि अरे 5 मिनट इस पे इन्वेस्ट कर दिए अब तो करना ही है, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इवन इफ यू वेस्ट योर 5 मिनट्स ऑन दिस क्वेश्चन यू हैव टू रियलाइज इट कि 5 मिनट तो वेस्ट हो गए, वो हो गए। अगर और 15 मिनट लग के आंसर आ भी जाए या और 20 मिनट लग के आंसर आ भी जाए, it will not be worth it. So this is something you have to realize, okay, and not like stick to the question. अगर नहीं हो रहा है तो just let it go. 5 मिनट वेस्ट हो गए हैं, कोई बात नहीं, वो आगे मेकअप कर लेंगे। पर और 20 मिनट लगा के सेट हो भी गया तो कोई फायदा नहीं है। हो सकता है उस 20 मिनट पे हम दूसरे 2 सेट्स कर सकते थे, 3 और 4। तो जानबूझ के ऐसे फंसाने वाले क्वेश्चंस जो है वो बिगिनिंग में दिए जा सकते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट देम, ठीक है। हाँ, तो आज यही हुआ, काफी लोगों ने ये किया होगा, ऐसा किया होगा, तो ये नहीं करना है। जस्ट स्किप देम इन दी फर्स्ट राउंड, ओके। मे बी अगर आपको लग भी रहा है कि नहीं कुछ तो मतलब मुझसे हो जाना चाहिए, आई डोंट नो व्हाई आई एम स्टक आफ्टर 5 मिनट्स, तो उसको एटलीस्ट एक बार छोड़ दो, उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दो और उस पर वापस आ जाना, है ना। उसी वक्त उसको करने की कोशिश मत करो क्योंकि कोई फायदा नहीं है 20 मिनट लगा के सॉल्व हो भी जाए तो। सो like if your target is 90 plus, you have to go for 4 plus sets. If your target is 98 99 plus, you have to go for 5 plus sets, and the accuracy should be 90%. Like if you get 18 out of 20 correct, there is a high chance you would get anything above 98 percentile, that too in a moderate paper. If it's a difficult paper, this will further go down, हो सकता है 15 में ही आ जाए, ठीक है। एक मॉडरेट पेपर जो 2018-19 में था उसमें दिस वाज इनफ टू गेट अ 98-99 परसेंटाइल। ओके, व्हाट अबाउट दिस वन? तो ये क्वेश्चन आई थिंक इट वाज फ्रॉम डेटा सफिशिएंसी, जो कि कैट के सिलेबस में है पर काफी साल से देयर हैव बीन नो क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक, ओके। स्टिल इट वाज गिवन क्योंकि अगर सिलेबस में है वी कांट जस्ट स्किप इट, सो लेट्स जस्ट प्रैक्टिस इट। अगर आया तो ठीक है, नहीं आया तो एटलीस्ट इट विल बी यूजफुल फॉर अदर एमबीए एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। सो आई थिंक इट वाज इजी, राइट, ठीक है। तो ये कर सकते थे अगेन। एंड लास्ट वाला 63, okay, 63, this one. So Bajaj Motorcycle manufactured and sells motorcycle in India. What about this question? So it was moderate, or some people are saying easy and doable. Okay, so just the first 2 questions were the one which were very tough according to the entire paper, and you should have let them go. Like you should have let them go. And बाकी जो थे उसमें से again it was your pick if you are like good at calculation, or according to whatever it is you could have decided बाकी 6 सेट्स में से, ठीक है। एक सेट में तो टेक्निकल इशू आ गया तो वो तो कुछ और ही है, पर उसके अलावा आई थिंक यू कुड हैव इजीली अटेम्प्टेड 4 प्लस सेट्स। 4 प्लस सेट्स कर सकते थे सब लोग, है ना। So which question did you like spend the most time on? कैसे टाइम लग गया? तो जो 4 सेट एटलीस्ट 4 सेट इजीली 60 मिनट्स में डुएबल थे, ठीक है। फर्स्ट वाला जो सेट था पजल वाला उसमें हार्डली 8 to 10 मिनट्स में इजीली इट कुड हैव बीन डन, ठीक है। उसके बाद एक टेबल वाला भी सेट था, वो भी हो सकता था उतने टाइम में। और फिर आप इन सब के लिए 15-15 मिनट ले लो ना, स्टिल 4 सेट तो आराम से 60 मिनट्स में यू कुड हैव डन। If you didn't get stuck at the first or second one, of course. हाँ ठीक है, वो मैं समझ रही हूँ हर्षिल। सो आप उसको काउंट करके बता दो कि कितने करेक्ट हुए, नहीं तो 50 प्लस होता देन इट्स फाइन, तो याशु फिर आपका मैक्सिमम वाला हो गया था, कितना टाइम लगा? Yeah, see, Manish, it again depends on learner to learner. We cannot say like जो ये चीजें होती है tough, easy and moderate, these are just perspective.
These are just perspective. There is no definite definition for them. So one said that someone finds tough, other person can find it easy, another person can find it moderate. The same set we are talking about. So it depends on different people's learning, like where they are at present, whether they are beginner or they are aware of the concepts, or they are too good at analysis, too good at calculations. So many factors are involved, right? सो इट्स जस्ट अ पर्सपेक्टिव, वी कांट हेल्प दैट. बट एक होता है ना जो, हाँ ये सेट तो सबसे हो जाना चाहिए. सो वी टॉक अबाउट दैट हियर व्हेन आई से इजी, टफ और मॉडरेट. व्हाट वी वर टॉकिंग हियर, इट वाज दैट. ओके, सो मैक्सिमम मिनिमम, आप किसी को अगर कोई कॉन्सेप्ट से अवेयर नहीं है, सो ऑब्वियसली इट वुड हैव बीन टफ फॉर देम. And if you are aware of the concept, if you have practiced enough set on maximum minima, it would have been easy for you, है ना? See, so Bull's race question, a lot of them told that it was easy, and a lot of them would have found it moderate or tough. Okay. So it was comparable. जैसे comparable इस सेंस में बोल सकते हैं कि कैट में भी आपका ऐसा ही रहेगा, ठीक है. 2 सेट से ज्यादा टफ सेट्स नहीं आते, ठीक है. कभी कभी अगर 3 आ गया तो उस पूरे पेपर को हम लोग क्या बोलेंगे कि बहुत टफ पेपर था, जैसा कि 2017 में हुआ था. 2017 के पेपर में आपको दिखेगा कि हो सकता है 3 ऐसे सेट्स थे जो बहुत टफ थे, अदर्स वेर इजी और मॉडरेट. पर फिर उस ओवरऑल पेपर को ही बहुत डिफिकल्ट बोला गया, ठीक है. पर स्टिल कितना भी टफ पेपर हो, उसमें हमेशा कम से कम 4 सॉल्वेबल सेट्स हमेशा रहेंगे. यू जस्ट हैव टू फिगर देम आउट एंड डू देम. हमेशा रहेंगे. ओके, थीटा वाले क्वेश्चन. सी दैट डिपेंड्स कि किस टाइप का कैलकुलेशन है. अगर बहुत सारा काफी मल्टीप्लीकेशन वगैरह है तो फिर कैलकुलेटर की जरूरत पड़ सकती है, वरना अगर नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो उसको फिर उस पर आप वर्क करो ना अभी प्रैक्टिस करते वक्त. व्हेन यू प्रैक्टिस, ट्राई टू नॉट यूज द कैलकुलेटर एंड लाइक डू इट ओरली, ठीक है. जैसे जो सपोज कुछ बड़े बड़े नंबर्स ऐड करने हैं, 22, 86, 34, अगर इस टाइप के कुछ नंबर्स है तो लाइक ट्राई टू गेट इट राउंड ऑफ 8 और 2 पहले उसको ऐड किया, मतलब उसको 10 इन मल्टीपल्स ऑफ 10 ऐड करने की कोशिश की. सम ट्रिक्स लाइक दैट. सो ट्राई टू यूज देम व्हाइल यू प्रैक्टिस सो दैट इवन इन द टेस्ट यू कैन अप्लाई इट. अब DILR में आंसर गलत दिया है. Okay, anybody else have a doubt in this question? Last question, like the last question of this set. Okay, some are saying it was correct and some are saying it was wrong. We'll see it. यार वो तो सेट सॉल्व करेंगे तब बता सकती हूँ. सो जो सेट्स के सॉल्यूशंस है वो हम लोग देखेंगे 7 to 8 वाले क्लास में, हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है. अभी भी टाइम है, सो विल सी 1 or 2 सेट्स. और जो लोग बिगिनर्स लेवल पे है, जिनसे थर्ड सेट भी नहीं हो पाया, या फिर जो लोग अभी 30 स्कोर पे जिन्होंने मार्क किया था, so what you need to do is you need to start with your basics. So first of all, know your syllabus, ठीक है. figure out the correct syllabus, क्योंकि like there are so much syllabus on the internet, अलग अलग sites पे अलग अलग syllabus दिया हुआ है. So you have to figure out the correct syllabus, क्योंकि वहाँ पे सबसे बड़ी mistake हो रही है. like इतने लोग रोज मुझे text करते हैं, blood relation, binary logic, ये सब कैट के लिए important है क्या. मतलब ये भी अगर मतलब ये भी नहीं पता है, क्योंकि कैट सिलेबस में ये सब है, बट दीज आर नॉट लॉन्गर द पार्ट ऑफ कैट एग्जाम, ठीक है. अभी जो पैटर्न है वो काफी चेंज हो गया है. सो ये सब अब नहीं आता, ठीक है. सो आई विल अपलोड अ PDF नाउ जिसमें पूरा सिलेबस जो है अभी रिसेंट क्वेश्चन पैटर्न के हिसाब से वो दिया हुआ है, वो आप ले लेना यहाँ पे. तो दिस PDF यू कैन डाउनलोड लेटर आफ्टर द क्लास. आफ्टर 1 hour द PDF गेट्स अपलोडेड, ठीक है. द PDF गेट्स अपलोडेड. So you can find it जहाँ पे अभी आप क्लास देख रहे हो, वहीं पे you will find 3 vertical dots at the end, और उस पर क्लिक करने से you can get the option to download the PDF. वहां से आपको ये पूरा PDF मिल जाएगा सोल्यूशन के साथ साथ ये सिलेबस का, ठीक है. सिलेबस आप यहाँ से देख सकते हो for LR, DI and these are the other reasoning topics. ये कैट के सिलेबस में है, बट इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन कई सालों से नहीं पूछा गया है.
दो दीज आर पार्ट ऑफ अदर MBA एंट्रेंस टेस्ट। तो उसके लिए अगर आप कोई भी कैट के अलावा और एग्जाम लिख रहे हो तो आपको ये जरूरत पड़ेगी, ठीक है, इन टॉपिक्स की। और इनमें से मैं बता दूं, ये 3 टॉपिक्स जो है, कोडिंग डिकोडिंग पे एक सेट आया था 2018 में, क्रिप्टो अर्थमेटिक पे एक सेट आया था 2019 में, और नेटवर्क एंड रूट्स पे एक सेट आया था 2017 में। तो इसको फिर अगर अगर हम, जैसे मैं बता रही हूँ, सपोज ये टॉपिक्स आपने नहीं प्रिपेयर किए फॉर कैट, तो भी जो कोडिंग डिकोडिंग वाला सेट था, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं था कि वो सॉल्व हो पाने के लिए आपको नॉलेज चाहिए थी, आपको कोडिंग डिकोडिंग की प्रायर नॉलेज चाहिए थी, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं था। इट वाज अ नॉर्मल पजल सेट विच यू कुड हैव सॉल्व्ड जस्ट बाय फॉलोइंग द क्लूज, ठीक है। फिर से क्रिप्टो अर्थमेटिक पे जो सेट था, अगेन ऐसा कोई जरूरी नहीं था कि प्रायर नॉलेज होने से ही आपको कर पाते। अगर आप वो सेट फर्स्ट टाइम भी देख रहे थे, फिर भी देयर वाज इनफ इंफॉर्मेशन, यू कुड हैव जस्ट सॉल्व्ड इट, ठीक है। नेटवर्क एंड रूट्स वाला 2017 में था, सो दैट वाज अ बिट टफ, बट अगेन इट वाज आल्सो सॉल्वेबल। नहीं, सिलोजिज्म ये सब कैट में नहीं आते। I don't know like where are people getting these from, but binary logic, syllogisms, ये डायरेक्शन रिलेशन, ये सब डायरेक्टली कैट में नहीं आता। ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन पे फिर भी हो सकता है कि एक पजल के क्वेश्चन में थोड़ा सा डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट डाल दिया, या फिर थोड़ा सा ब्लड रिलेशन का कॉन्सेप्ट डाल दिया, दैट इज स्टिल पॉसिबल, दो वो भी नहीं देखा गया है कुछ सालों से, बट स्टिल दोज आर लाइक पॉसिबिलिटीज, ठीक है। PDF सबको मिल जाएगा, ये फ्री क्लास है तो PDF इसका सबको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये पूरी डिटेल्स दी हुई है सिलेबस की, आप यहाँ से देखो, स्टार्ट पिकिंग अप द टॉपिक्स वन बाय वन एंड प्रिपेयर ऑन दैट। सो एक और चीज मैंने कल ही स्टार्ट किया है, जैसे अभी आपको सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक अगर आप आज से करते हो 3 दिन, तो ट्यूसडे को इन द 7 to 8 PM फ्री क्लास आई हैव अ टेस्ट ऑन सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। सो इफ यू प्रिपेयर दिस टॉपिक एंड कम फॉर द टेस्ट, यू कैन चेक इफ यू आर डन विद द टॉपिक और नॉट, एंड ऑन दैट डे आई गिव यू अनदर टॉपिक, ठीक है। फिर 3 दिन उस पर प्रिपेयर करेंगे और 3 दिन बाद फिर से उस पर भी टेस्ट होगा। सो दिस इज समथिंग आई हैव बिगेन, दिस इज फॉर फ्री, मतलब ये पूरा फ्री है, ये जो स्टार्ट किया है मैंने, ठीक है। तो एक एक टॉपिक मैं आपको क्लास में ही दूंगी, इसके लिए आपको क्लासेस में आना है, 7 to 8 रोज फ्री क्लासेस होती है। तो इसके अलावा क्लासेस तो रोज होती है, टेस्ट सिर्फ 3 दिन बाद होंगे। तो बीच में क्या होगा, जैसे आज की क्लास और कल की क्लास में क्या होगा, वहां पे हम लोग मिसलेनियस सेट्स देखेंगे। सो कैट के लिए, कैट लेवल के हम लोग मिसलेनियस सेट्स देखेंगे। जिनको भी प्रैक्टिस पर्पस के लिए क्लास में आना है, दे कैन जॉइन द क्लास, ओके। So you can find the class on my profile. It's every day 7 to 8 PM. And these are for free. Anybody can join. So it's sitting arrangement is the next topic. Good overall score, anything above 40 for now, 40 plus. ठीक है, धीरे धीरे your target should be to be able to reach 5 plus sets in 1 hour with 90% accuracy. That's your target. If you are able to achieve this by the end of July and then maintain it throughout from July till November, then you are surely, like, you can expect yourself to be getting a 98, 99 plus percentile. ठीक है, यहाँ तक पहुँचना है बस। तो अभी आप कहीं पे भी हो, if you are at 2 plus sets, 3 plus sets, 4 plus sets, wherever you are, our ultimate target is this. And how much time do we have? By July. और ये टेस्ट जो आपके 10 टेस्ट आपको मिले हैं, ये भी जुलाई तक चल रहे हैं। सो यू कैन यूज दीज। पर फिर से जो लोग का अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ही नहीं है, तो क्या करोगे, तो वर्क करो कॉन्सेप्ट पे पहले, ठीक है। डोंट जस्ट कीप राइटिंग टेस्ट विदाउट प्रिपरेशन एंड कीप डिमोरलाइजिंग योरसेल्फ। डोंट डू दैट टू योरसेल्फ, like it will do no good, ठीक है। You will just think that क्या नहीं हो पाएगा हमसे, all those things. So don't do that. Everybody can do it. आप कौन से बैकग्राउंड से हो, साइंस से, कॉमर्स से, या और कहीं से भी, मतलब जो भी बैकग्राउंड से हो, इट डजंट मैटर, ठीक है। आपने कौन से कॉलेज से पढ़ा है इसके पहले, इट डजंट मैटर। आपका मैथ्स अच्छा है कि नहीं, इट डजंट मैटर। आपका रीजनिंग अच्छा है कि नहीं, इट डजंट मैटर। यू कैन स्टार्ट टुडे एंड ऑल ऑफ अस कैन रीच द 99 percentile mark. All of us can do it. You just have to know the right direction where you have to put your efforts, where you have to put your inputs, and you just need to know कि कैसे, like right direction, right path अगर पता होगा, you will be able to do it, ठीक है। Everybody can do it. But अगर गलत direction में invest कर रहे हो, your energy, your what to say, time, then it will only lead to disappointments, ठीक है। So okay, how to begin, like what are the sources you can rely on? Let's talk about that.
सो यू कैन ईदर गो टू बुक्स फॉर बेसिक्स, ठीक है। बुक्स पे हम लोग एडवांस कैट के सेट्स के लिए नहीं रिलाई कर सकते, क्योंकि जो अभी लास्ट 2017, 18, 19 के आप पेपर देखोगे उसमें जो सेट्स है वो आपको बुक में कहीं भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो बुक्स आर अ बिट आउटडेटेड, बट फिर उसमें आपको पर बेसिक अगर आपको कवर करना है, सो बेस्ट सोल्यूशन है यू कैन गो टू द बुक्स, ठीक है। बेसिक से अगर स्टार्ट करना है, उसके अलावा आप फिर से मेरे प्रोफाइल पे जा सकते हो। आपको मेरे प्रोफाइल पे 1000+ फ्री वीडियो लेसन मिलेंगे, फ्री वीडियो लेसन, जो कि 8 से 10 या 12 मिनट के छोटे छोटे लेसन है। हर एक लेसन में मैंने अच्छे से पूरा पूरा टॉपिक, पूरे पूरे क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन किए हुए हैं, ठीक है। सो आप थोड़ा सा आपको प्रोफाइल में जाके नीचे की तरफ स्क्रॉल करना पड़ेगा, क्योंकि काफी सारे कोर्सेज है अलग अलग। तो थोड़ा नीचे की तरफ जाओगे, यू विल गेट द कोर्सेज सेपरेटली ऑन सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, इन सब पे आपको अलग अलग से कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। सो व्हाट यू कैन डू, पहले आप यहाँ से कॉन्सेप्ट पढ़ लो और फिर आप जाके बुक से प्रैक्टिस कर लो और फिर आप टेस्ट देने आ जाओ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है, ठीक है। अरे अब बेस्ट बुक में ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी बुक ले लो, ठीक है। अरुण शर्मा सर की बुक है, आई थिंक और भी कुछ कुछ बुक्स है, कोई भी बुक ले लो, इट डजंट मैटर। क्योंकि बेसिकली बुक्स में होता क्या है, बुक्स में आपको क्वेश्चन मिलेंगे एकदम पास्ट ईयर वाले, जो 1990 से क्वेश्चंस अवेलेबल है 2008 तक, वो सब क्वेश्चंस आपको एक्चुअली बुक्स में मिलेंगे। तो इनडायरेक्टली आपकी उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू ऑल द पास्ट ईयर क्वेश्चंस बिफोर यू राइट द एग्जाम्स। दो वो क्वेश्चन जो है 1990 से 2018 के, दो वैसे क्वेश्चंस अब नहीं पूछे जाते, स्टिल दोज आर वेरी गुड फॉर योर बेसिक बिल्ड अप, ठीक है। सो इनडायरेक्टली अगर आप बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपकी ये प्रैक्टिस भी हो रही है। तो दो, एक तीर से दो निशाने। सो डिड यू गेट द पॉइंट? पहले आप वीडियो लेसन में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है हर एक कोर्स में कि कैसे क्वेश्चंस को प्रोसीड करना होता है, थोड़ा जो भी थ्योरी है कॉन्सेप्ट का वो बताया हुआ है। तो यहाँ से पढ़ो, फिर बुक से क्वेश्चन सॉल्व करो और फिर टेस्ट देने आओ, ठीक है। तो इस ट्यूसडे को 7 to 8 PM we have the test on sitting arrangement. There I'll tell you कि next क्या करना है। All right, अब बाकी कोई डाउट है तो पूछो, otherwise we'll see one set क्योंकि there is still 20 minutes. हाँ अभी 20 मिनट है तो एक दो सेट देख लेंगे जितना हो पाएगा। और कोई डाउट है पहले तो पूछ लो, otherwise we'll start. Overall, I think you should try to keep above 120, around like 120 in CAT with a paper like in 2019, you would have got a 95+ with 120 overall score. Okay, so anything above 100 for now would be good, would be like very good, and you can improve it going ahead. $30+ आया है, मतलब आप एकदम बीच के रेंज में हो, मतलब आप बहुत बुरे भी नहीं हो और बहुत अच्छे भी नहीं हो। यू हैव टू, अब आपको क्या करना है, आप खुद से एक बार एनालाइज करो कि कौन से टाइप के सेट थे जो आपने एग्जाम में इग्नोर किए। जैसे कि अगर टेबल आया और आपको लगा ये DI से है, तो हो सकता है वो इजी भी था, तो आपने बस वो डायग्राम देख के उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया। सो इस टाइप की चीजें, ओके, फिगर आउट कि आपका प्रॉब्लम एरिया क्या है, ठीक है। तो जिनको जो अपने प्रॉब्लम्स फिगर आउट कर सकते हैं वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम फिगर आउट कर सकते हैं, यानी कि अब क्या करना है, सोल्यूशन निकालना है। प्रॉब्लम उनके साथ है जो जिनको अपने प्रॉब्लम्स भी नहीं पता। सो डू द फर्स्ट स्टेप फर्स्ट, फिगर आउट which area, which topic you are facing the problem with, like whether it is the time, whether it is the solving part, whether it is the concept, whether it is the fear of some topic. Just by seeing the topic you just ignore them, you don't even try to see whether it is easy or not or what, मतलब क्या है। Figure out your problem and then we will see a solution, ठीक है। Yes Mahesh, you can definitely do it, you just have to believe in yourself and follow the right path. For engineers क्या पूछ रहे हो देवेंद्र? पुनीत, वीडियोस आर अवेलेबल टॉपिक वाइज है थोड़ा, पर आपको कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस के लिए थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर मैंने और PYQs और अदर MBA एंट्रेंस एग्जाम्स ये सब के कोर्सेज डाल दिए, तो वो थोड़ा नीचे चला गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। अलग अलग आपको मिल जाएंगे कोर्सेज लाइक सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, टीम फॉर्मेशन पजल,
वेन डायग्राम, गेम्स, टूर्नामेंट, सबके अलग अलग आपको कोर्सेज मिल जाएंगे. ओके, तो देन फर्स्ट सेट करें कि बुल्स वाला सेट करें, क्योंकि फर्स्ट सेट में फिर टाइम लग जाएगा आई थिंक, और ये क्लास मुझे टाइम पे खत्म करनी पड़ेगी क्योंकि फिर नेक्स्ट क्वांट की डिस्कशन क्लास है ना, अदरवाइज ये क्लास खुद से बीच में कैंसिल हो जाएगी, खत्म हो जाएगी. ठीक है, वो देख के चलना पड़ेगा. सो आई थिंक दो मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन के कॉन्सेप्ट है ना, वो शाम को कर लेते हैं. वी हैव अ क्लास फ्रॉम 7 to 8. ठीक है, उसमें फर्स्ट एंड सेकंड सेट आज डिस्कस कर लेंगे और अभी बुल्स वाला कर लेते हैं. ठीक है, okay. So in a race, 4 bulls were participating whose name was J, L, R and H. The win odd placed against bull J, L, R, H were this. ठीक है, तो अगर आपको ये नहीं भी पता है what is given, what are win odds, ये सब अगर आपको नहीं भी पता है, they have explained it so well. See, win odd is the amount of profit one gets against the amount one has bet. For example, a win odd of 4-1 would mean you get ₹4 profit against ₹1 you bet. You get 100% of the profit and the amount of bet on that bull only if the bull wins the race. If the bull finishes second, you get only 20% of the profit and 100% of the amount of bet on the bull. If the bull finishes third or fourth, you lose all the bet money. Okay? So all 4 bulls raced 4 times. Mr. Ibrahim placed equal bets of 20,000 on all 4 bulls in all the 4 races. So let's see what happened. There were 4 races: race 1, race 2, race 3, race 4. You have to figure out of bull J, R, H and L who would have placed what, first, second, third, fourth, क्या आए होंगे वो इन रेसेस में, ये फिगर आउट करना है. एक बार हम ये फिगर आउट कर पाते तो हमें पता लग जाता कि मिस्टर इब्राहिम ने कितना विन किया होगा. ठीक है, तो जैसे अगर बेट अमाउंट 2 है तो प्रॉफिट आएगा 3, पर बेट अमाउंट कितना है टोटल 20,000, उसके रेस्पेक्टिव में ये सॉल्व करना था. सो लेट्स सी. ओके, so first question is, if Mr. Ibrahim received a return of 92,000 in a race, then which bull finished the race first? Okay, which bull finished first in the race? That is the question. So we see for bull J, it is win odds are 3-2. For bull R, it's 3-1. For bull H, it is 2-1, and for bull L, it is 8-5. All right. So we see that if we have got 92,000 rupees in a race, then what would have happened? So he had invested how much? 20,000 on all the 4 bulls in each of the 4 races. So एक ही रेस में ऐसा हुआ कि इन सब पे 20,000 rupees invested थे और टोटल कितना रिटर्न आया? 92,000. यानी कि ओवरऑल वो क्या थे? प्रॉफिट में थे, है ना. ओवरऑल मिस्टर इब्राहिम वाज इन प्रॉफिट क्योंकि उन्होंने टोटल इन्वेस्ट किया था 80,000 and he have got 92,000. So there was an overall profit. Now let's see what would have happened. How can he get a overall profit even if obviously 2 bulls जो है वो थर्ड या फोर्थ हुए होंगे, क्योंकि एक ही बुल फर्स्ट हो सकता है, एक सेकंड, एक थर्ड और फोर्थ. तो इन 4 में से 2 बुल्स थर्ड फोर्थ हुए होंगे, यानी कि उसका पूरा पैसा 40,000 नुकसान हुआ होगा, राइट. 2 bulls, are you getting the point? Out of 4, 2 bulls would have lost the matches, like they would have been third or fourth. Because of that 40,000 would have been straight away loss. So बाकी 2 bulls जो फर्स्ट और सेकंड आए होंगे उन पे मिला के यानी कि 52,000 प्रॉफिट हुआ है, प्लस उनका पूरा बेट अमाउंट भी वापस आ गया, क्योंकि यही दिया है ना, जो फर्स्ट आ रहा है उसका आपको 100% प्रॉफिट मिलेगा और 100% बेट अमाउंट भी वापस मिलेगा. जो सेकंड आ रहा है उसका आपको 20% प्रॉफिट अमाउंट मिलेगा और 100% बेट अमाउंट मिलेगा. 100% bet amount, 100% bet amount. So 20,000 जो bet amount है on whichever bull have come first or second, you will get that back. So he will get that back 40,000 plus 52,000 उनको profit आ रहा है. तो 52,000 profit कैसे आया होगा? अब वो figure out करना था बस. ठीक है? So let's see. For H, he is getting twice the amount. ठीक है? For H, if suppose H wins, if H is first, he would have got twice the bet amount, that is 40,000.
If J was first, he would have got how much? 30,000. If R would have been first, he would have got okay. If R would have been first, he would have got 60,000 3 times. Are you following? 1 रुपए लगाने पे 3 रुपए मिल रहे हैं, तो 20,000 लगाने पे 3 गुना यानी कि 60,000 मिल रहे हैं. यहाँ पे 20,000 is if 5 times उसको 4 से मल्टीप्लाई करो 4 32,000. ठीक है. So now we see we needed a profit of 52,000. How could have we got that with this combination? और 20% भी निकाल लेते हैं तो easy हो जाएगा. 20% भी निकाल लेंगे इनका. तो अगर ये इनमें से सब अगर ये सेकंड पोजीशन पे होते तो फिर क्या होता? 20% बेट अमाउंट मिलता. What is that? Sorry, 20% of profit amount मिलता. So this is the 100% profit amount. इसका 20% ले लेंगे, है ना? So 20% of this is 6,000. 20% of this is 12,000. 20% of this is 8,000. And 20% of this is 64,000. Sorry, 6,400. ठीक है, 6,400. अभी देखो 52,000 का कॉम्बिनेशन कहाँ मिल रहा है? वेरी इजी. सो इट्स दिस एंड दिस. सो अगर ये बुल फर्स्ट और ये बुल सेकंड आया होगा और ये दोनों लास्ट आए होंगे, सो वी हैव गॉट आवर आंसर. यानी कि कौन सा बुल फर्स्ट आया होगा? इफ मिस्टर इब्राहिम हैव गॉट अ रिटर्न ऑफ 92,000, इट इज बुल एच. एम आई क्लियर? सो इट वाज अ सिंपल क्वेश्चन. यू जस्ट हैड टू फिगर आउट कि करना कैसे है. ठीक है, बस इतना ही फिगर आउट करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन 2. If Mr. Ibrahim received a return of 88,000 in all 4 races from his bets placed on, yeah, it was easy. So if Mr. Ibrahim received a return of 88,000 in all 4 races from his bets placed on bull H. Okay, so अब सिर्फ H की बात करेंगे. So हर राउंड में उन्होंने 20,000 ही लगाए थे. So इसका क्या है सीन? इसका H का सो इस 88,000 में सब कुछ इन्वॉल्व है रिटर्न में, यानी कि बेट अमाउंट प्लस प्रॉफिट, एवरीथिंग इज इन्वॉल्व. ठीक है. सो हमने एच के लिए देखा कि एच का रेशियो है 2:1. और अगर 20,000 इन्वेस्ट हो रहे हैं तो अगर फर्स्ट आ जाते हैं तो इट विल बी 40,000. सेकेंड आने से इट विल बी 20% ऑफ दिस, दैट इज 8,000. थर्ड आने से अच्छा ये प्लस 20,000 भी है और ये भी प्लस 20,000 भी है. और थर्ड आने से कुछ नहीं मिलेगा, फोर्थ आने से कुछ नहीं मिलेगा. सो अगर टोटल वो बोल रहे हैं कि मिस्टर इब्राहिम ने 88,000 रिटर्न उनको मिला है in all 4 races from his bets placed on bull H, then how many times would bull H had finished the race in second position? Second position कितने बार आया होगा? So यहाँ से टोटल रिटर्न इज 60,000. यहाँ से टोटल रिटर्न इज 28,000. हम देख रहे हैं कि अगर एक बार फर्स्ट और एक बार सेकंड आने से ही ये अमाउंट आ जाता है और किसी भी कॉम्बिनेशन से यू विल नॉट गेट दैट. सो इट्स वेरी क्लियर दैट सेकंड एक बार आया होगा. द आंसर इज 1. So this was easy again. Next one, if Mr. Ibrahim received a return of 86,000, 1,08,000 and 76,400 in 3 of the 4 races, then which of the bull won the 4th race provided all the bulls won a race only once? तो इसमें आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि इन 3 में कौन से बुल ने फर्स्ट आया होगा. जो भी बुल बचेगा that will be the answer, right? So again, how will we do that? We have the table from previous case. JRLH. It was first aane pe it was 30,000, 40, 60 and 32. Sorry, 30, 60, 42 and 40,000. Okay, for first. For second, 20%, 6,000, 12,000, 42 नहीं है, 32 है ना, sorry. हाँ, अभी ठीक है. 6,400 और 8,000. थर्ड आने पे it's 0, 0 and fourth आने पे भी it's 0, 0.
ठीक है, अभी कॉम्बिनेशन लेके यू हैव टू फिगर आउट कि कहाँ पे 86,000 हो सकता था टोटल, और ये भी ध्यान रखना है कि 20,000 भी इसमें ऐड करने हैं ना. Okay, so what about this? How can you get a combination of 86,000? So it's better we add the 20,000 here only. 3, 2, 2. 20,000 ऐड कर दिया इधर मैंने, इधर भी कर देंगे. हाँ, 20,000 ऐड करने से बेटर हो जाएगा, इजी हो जाएगा. So let's take 30 plus 20 is 50, 60 plus 20 is 80. This was 50,000, 80,000. This was 32 plus 20, 52, and 40 plus 20, 60. हाँ, अब देखो. So 86,000 के लिए we could have gone for H first. H first and J second, that is giving us 86,000. For 1,08,000, 1,08,000, how will we get that? So 8,000 we have here and 80,000. So which means R first. ठीक है? R first. Next 76,400, उसके लिए 26,400 and 50. That is J first. So we can say कौन बच गया? L. So L should be first in the next round because all bulls are first only in one race each. इंडिविजुअल केस में हर एक, अगर आपको आई थिंक ऐसे ज्यादा इजी है, रैंक असाइन वसाइन करने की जरूरत है क्या? फिर तो बहुत सारे केसेस बन जाएंगे ना. सो गाइस, पहले हमने ये निकाला कि अगर बुल मतलब जे फर्स्ट आ रहे हैं तो उसको कितना रिटर्न मिलेगा मिस्टर इब्राहिम को. तो उसको 30,000 तो प्रॉफिट मिलेगा प्लस 20,000 उनका जो बेट अमाउंट था वो भी वापस मिलेगा, है ना. पहले हमने ये निकाला. कैसे निकाला ये सब तो आ गया ना आपको, टेबल बनाना. 3,2 दिया हुआ था, 3,2 दिया हुआ था, यानी कि उन्होंने अगर 20,000 इन्वेस्ट किया उनको 30,000 वापस आ रहे हैं, प्लस 20,000 भी वापस आएंगे, तो 50,000. तो फर्स्ट आने पे जो था वो निकाल लिया हमने. सेकंड आने पे क्या था? 20% प्रॉफिट अमाउंट प्लस 20,000 पूरा बेट अमाउंट वापस आ रहा था, तो वो निकाल लिया. थर्ड और फोर्थ आने पे कुछ भी नहीं मिल रहा था. अब हमने ये वैल्यूज देखी. 86,000 के लिए आप यहाँ पे कौन से दो नंबर्स का टोटल ले सकते हो? सो द ओनली पॉसिबिलिटी वाज 60,000 एंड 26,000, यानी कि फर्स्ट कौन आया होगा इस रेस पे? H. ठीक है. डाउट क्लियर हो गया? ओके, लास्ट एक और क्वेश्चन है ना. अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस क्वेश्चन, विच बुल कांट फिनिश सेकंड 2 times? विच बुल कांट फिनिश सेकंड 2 times? सो यहाँ पे फर्स्ट रेस में सेकंड कौन था? सेकंड वाज J. सेकंड वाज J. और इस रेस में सेकंड कौन था? 28,000, इट वाज H. इस रेस में सेकंड कौन था? It was this L. L was second. So question is which bull cannot finish second twice? It will be L, क्योंकि next race में L first होगा. और second कौन हो सकते हैं? J भी हो सकते हैं, H भी हो सकते हैं. नहीं, but R तो first ही R, एक बार भी second हुआ नहीं है. So it can be both L या फिर R. ठीक है. L जो है अगर वो first है तो next race में वो second तो definitely नहीं हो सकता. और R भी क्योंकि सिर्फ अभी तक फर्स्ट हुआ है, तो अगर इस रेस में वो सेकंड भी हो जाता है तो वो एक ही बार सेकंड होगा. Therefore the answer is L and R. L and R एक भी बार क्या बोलते हैं, 2 बार सेकंड नहीं हो सकते. ठीक है. ऑल राइट. सो अभी बाकी के क्वेश्चंस विल सी इट इन द 7 to 8 क्लास. टुडे वी विल सी द फर्स्ट टू मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन कॉन्सेप्ट. ठीक है. उसके बाद बाकी का जो है कल और ऐसे फिनिश कर लेंगे. ट्यूसडे को तो टेस्ट है, उसके अलावा जो है फिनिश कर लेंगे. ठीक है. और आई थिंक कल और एक और क्लास में इट विल गेट ओवर. ठीक है. उसके बाद गाइज फिगर आउट, अपना एनालाइज करो, फिगर आउट योर वीक एरियाज, जो टॉपिक्स आप जहाँ पे स्टक हुए थे, फिगर दोज थिंग्स आउट एंड वर्क ऑन देम. प्रैक्टिस इज द answer. Practice is the answer. I have also started this free thing for you. I told you about it already. So we are seeing sitting arrangement topic. Sitting arrangement topic आपको खुद से solve करना है.
और उसके बाद आपका एक छोटा सा चेक योर अंडरस्टैंडिंग टेस्ट है ऑन ट्यूसडे, ठीक है, वो क्लास में ही होगा, मेरी क्लास में 7 to 8 फ्री क्लास है ये। यहाँ पे आके वो टेस्ट दे देना, समझ में आ जाएगा टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं, और फिर यू कैन मूव ऑन, आई गिव यू अनदर टॉपिक, सब लोग उस पर वर्क करेंगे और फिर से 3 दिन बाद उस पर टेस्ट होगा। दिस इज हाउ यू कैन फिनिश। और आपको लग रहा है कि अगर आप खुद से प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हो, देन यू कैन गो फॉर अनअकैडमी क्लास, दैट्स द लास्ट रिसोर्ट। Okay, that's the last resort. Until then, try on your own and figure out, only if you need, you go for classes. Okay, otherwise ऐसा जरूरत नहीं है कि आपको करने से ही होगा। लिंक फॉर विच क्लास? इवनिंग क्लास। अच्छा एक सेकेंड, मैं लिंक दे देती हूँ, अदरवाइज यू कुड ऑल्सो फाइंड इट इन माई प्रोफाइल। सो स्पेशल क्लासेस सेक्शन में आपको मिल जाता हूँ। इट्स कॉल्ड मास्टर DILR विद रिया अग्रवाल, पार्ट 11 चल रहा है, ठीक है। वी आर सीइंग दिस फ्री क्लासेस ऑन डेली बेसिस। So here's the link. जब आज और कल 7 से 8 में सोल्यूशन करोगे तो मैं टेस्ट के लिए पढ़ा नहीं रही हूँ, पढ़ना आपको खुद है, मैंने आपको टॉपिक दिया है। तो कॉन्सेप्ट ऐसा है कि सी अगर सब कुछ करा देंगे तो फिर तो क्या मतलब हुआ, फिर जो लोग प्लस ले रहे हैं, फिर हाउ इज इट डिफरेंट, ठीक है। सो वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट अलाउड टू टीच कॉन्सेप्ट इन फ्री क्लासेस। फ्री क्लासेस में हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं, आई टेक क्लासेस एवरी डे वेयर आई टेक कैट लेवल के सेट्स, वैसे मैं हेल्प कर रही हूँ। पर मैं देख रही हूँ कुछ लोग बिल्कुल बिगिनर है और उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। सो दैट्स व्हाई यस्टरडे इटसेल्फ, ये कल ही स्टार्ट हुआ है, कल से हमने इनिशिएटिव लिया है। So I gave you a topic in yesterday's class that is called sitting arrangement. इस पे आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं, खुद से आपको ये टॉपिक प्रिपेयर करके आना है। आई हैव गिवन यू 3 days टाइम, और ट्यूसडे वाले क्लास में हम लोग छोटा सा एक टेस्ट आई कीप ऑन सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चंस, ठीक है। फिर आई गिव यू नेक्स्ट टॉपिक ऑन दैट डे, और वो टॉपिक 3 दिन बाद जैसे कि फ्राइडे को देखेंगे। तो उसके बीच में भी पर क्लासेस रहेंगे, वेडनेसडे, थर्सडे, मंडे, आज क्लासेस है ना, उनमें हम लोग पहले ये कवर कर लेंगे जो ये पेपर है आज का, वो जैसे ही खत्म हो जाते हैं 3 क्लास में, उसके बाद फिर से वी विल गो ऑन आवर मिसलेनियस, जो हम सॉल्व कर रहे हैं कैट लेवल के क्वेश्चंस, वो हम फिर से सॉल्व करते रहेंगे। समझ में आ गया? So I'll keep 3 questions in the test. I'll give you around 30 to 35 minutes to solve them, and then I can explain it in the remaining 25 minutes. ठीक है? So if you are already enrolled in Plus, then you can go and watch that. You can join that complete course on DILR. बहुत अच्छा जा रहा है वो कोर्स, ठीक है। कम से कम 150 लोग उसको रोज अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो लोग बिल्कुल बिगिनर्स लेवल पे है या फिर मॉडरेट लेवल पे भी है, और काफी अच्छा रिस्पॉन्स है, ठीक है। वो हम लोग अभी स्टार्ट किया है हमने, तो फर्स्ट 5 क्लासेस जो है वो हो चुकी है, कल 6th क्लास है। और आपका जो भी मिस हुआ है, अब आप क्या कर सकते हो कि फर्स्ट और 5th क्लास आप देख के और कल के क्लास में आ जाओ। जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ है वो सिटिंग अरेंजमेंट पे है, वो फिर आप बाद में सीख सकते हो, ठीक है। और क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन है जहाँ पे पूरा सिलेबस और कैसे करना है वो पढ़ाया गया है, और 5th क्लास में पजल का क्लास हमने कल ही स्टार्ट किया है, तो ये आप देख के कल से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। रोहित प्लीज एक बार सर्च कर लो ना, इट्स कॉल्ड कंप्लीट कोर्स ऑन DILR, कंप्लीट कोर्स ऑन DILR। ठीक है। और जो जो लोग प्लस में एनरोल्ड नहीं है, उनको भी मैंने बता दिया क्या करना है। फिर से आपको आपको जाना है मेरे प्रोफाइल पे, आप जा सकते हो, एंड या फिर आप डायरेक्टली अनअकैडमी पे वहाँ पे सर्च करो सिटिंग अरेंजमेंट का कोर्स, ठीक है। और जो भी कोर्स पे मेरा नाम लिखा हो रिया अग्रवाल, वो वाला कोर्स आप पूरा देख लो। उसमें आई थिंक 6 to 10, आई डोंट रिमेम्बर कि एग्जैक्टली कितने, 6 से 10 कुछ लेसन होंगे। उसमें मैंने स्टार्टिंग से पूरा एक्सप्लेन किया है कि सिटिंग अरेंजमेंट होता कैसे है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे सॉल्व करना है, और कुछ बेसिक सेट्स भी है। पहले वहां से समझ लो, सीख लो, और फिर बुक्स से प्रैक्टिस कर लो, और फिर टेस्ट देने आ जाना ट्यूसडे को। अभी क्लियर है? और जो लोग को एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए, वो लोग रोज के क्लासेस में आ सकते हैं, 7 to 8, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। एवरीथिंग इज क्लियर?
हाँ तो ये किसने भेजा है ये क्वेश्चन सॉल्यूशन? सार्थक, हमने भी तो ऐसे ही सॉल्व किया ना, रैंक देते हुए कि अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आते हैं तो क्या उनका रिटर्न होगा। बुल वाला क्वेश्चन हमने भी तो वैसे ही सॉल्व किया जैसे आपने कर रखा है। प्लस कोर्स में पीडीएफ मिलता है, बुक्स नहीं मिलते, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ बुल सेट, ओके। लास्ट क्वेश्चन ऑफ बुल सेट में दोनों एल और आर ऑप्शन इसलिए थे क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि इस रेस में फर्स्ट और सेकंड कॉम्बिनेशन हमने निकाले क्योंकि हमारे पास टोटल था ना। अगर 86,000 उसका रिटर्न आया यानी कि उसको कैसे आया होगा वो 60,000 प्लस 26,000, यानी सेकंड कौन आया था? जे। तो फर्स्ट रेस में अगर जे सेकंड आया, सेकंड में एच सेकंड आया, थर्ड में एल सेकंड आया, फोर्थ में एल को फर्स्ट आना है, तो एल क्या सेकंड आ सकते हैं? नहीं। आर सेकंड आ सकते हैं? आर सेकंड आ सकते हैं, पर उस मतलब तब आर सिर्फ एक ही बार सेकंड आएगा ना, आर दो बार सेकंड नहीं आ सकता। आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्वेश्चन क्या है? विच बुल कांट फिनिश द सेकंड रेस टू टाइम्स। तो आर दो बार सेकंड कैसे आएगा? क्योंकि अभी तक वो एक भी बार सेकंड नहीं आया है। अगर वो इस रेस में आ भी जाते हैं, इट विल ओनली बी वन टाइम। और एल भी क्योंकि एक ही बार आया है और इस रेस में नहीं आ सकता, सो एल ऑल्सो कैन बी ओनली वन टाइम। पर अगर जे और एच में से कोई यहाँ पे सेकंड आते हैं तो वो लोग दो दो बार सेकंड आ पाएंगे, ठीक है। Okay, any other doubts? I think we have to end the class now. It's time. 50 plus Ritesh. You could have done, like, good attempt would have been 5 sets. 4 sets is also fine, Riddhima. Okay, bye. If anybody have any further queries, you can reach out to me through Learning app. Okay, you can message me there. फर्स्ट वाले टॉपिक आप बोल सकते हो मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन का छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो अगर समझ लोगे वो हर टॉपिक में काम आ सकता है। एक वेन डायग्राम में जैसे कि बहुत इनकॉर्पोरेट किया जाता है आजकल, है ना। सिलेबस पीडीएफ भी इसमें ही अटैच्ड है, वो आपको पीडीएफ जब डाउनलोड करोगे तो पूरा मिल जाएगा, ठीक है। ये सारे पेजेस भी मिल जाएंगे और वो भी मिल जाएगा। बुल सेट यू कैन से इट्स क्वांट बेस्ड एलआर, क्वांट बेस्ड एलआर। तो इस पे ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे एक ना एक सेट आता ही है एग्जाम में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके देन दैट्स इट, यू कैन कम टू द क्लास। एंड दोज हु थिंक कि वो लोग खुद से नहीं कर पा रहे हैं, तो इट इज द लाइक लास्ट टाइम। अभी से स्टार्ट नहीं करोगे तो इट विल जस्ट गेट टू लेट, ठीक है। अभी इट्स ऑलरेडी लाइक हाई टाइम टू स्टार्ट, इससे लेट और नहीं करना चाहिए। इट्स ऑलरेडी मई, टारगेट होना चाहिए कि बाय जून सिलेबस खत्म हो जाए एंड बाय जुलाई यू कैन स्टार्ट राइटिंग द मॉक। और बाय जुलाई जब आप मॉक लिखो तो आप 5+ सेट्स अटेम्प्ट कर पा रहे हो, दैट्स द थिंग, ठीक है। सो see it. अगर नहीं हो पा रहे, you can go for plus and don't forget to use my referral code if you're going for plus and reach me out for further queries. मैंने आपको पूरा बता दिया। प्लस के लिए आपको तभी जाना है अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो, अदरवाइज ऑल्सो फ्री में आई एम गाइडिंग यू, आई हैव टोल्ड यू थ्रू द एंटायर शेड्यूल, ठीक है। सो इट्स एब्सोल्युटली अप टू यू एंड दैट्स इट, दैट्स इट। विच लिंक यहाँ पे शेयर किया है ना मैंने, नेक्स्ट जो शाम को क्लास है उसका लिंक मैंने शेयर कर दिया है। पीडीएफ का कोई लिंक नहीं है, पीडीएफ आपको क्लास के एंड में मिलेगा, 1 घंटे बाद आप चेक करना, जहाँ पे आप अभी आप क्लास देख रहे हो यहीं पे आना, और जैसे यहाँ पे क्लास का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे आप देखोगे 3 वर्टिकल डॉट्स है, इस पे क्लिक करने से ऑप्शन आता है डाउनलोड पीडीएफ, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। 2 ऑप्शन होते हैं, विद एनोटेशन एंड विदाउट एनोटेशन। विद एनोटेशन यानी कि ये जो मैंने लिख रहा है उसके साथ डाउनलोड हो जाएगा, विदाउट एनोटेशन यानी कि उसके बिना आपको फ्रेश पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, सो दैट्स इट. We'll end this class here. Thank you very much. All the best. I'll see you in the next class at 7 p.m. Bye.